Yes, so we have discussed about land. ठीक है, that land is very important land resource, and we have various types of uses of this land resource. It is it fulfills our various types of needs, but still this resource is degrading. ठीक है, this resource need conservation and how we can conserve it. ठीक है, so this we have discussed about land, that how land use pattern is changing. ठीक है, and we are occupying more and more land under our control. And now then comes the second resource. What is the second? Soil. So in previous class you may have read about the forces that brings about changes in our earth, endogenic, exogenic forces. In that forces, in exogenic forces, if you have remembered, you have done about weathering and erosion. Then the upper part of the soil that is eroded from one place and deposited at the other. There is also one weathering, okay, exogenic forces. So weathering, that will come here in this class. So the soil. So what is soil? Soil is a very thin layer, grainy part, ठीक है, covering the surface. अगर हम बात करें तो what is अगर हम यहाँ पे लैंड है, लैंड का सबसे जो अपर पार्ट है उस पे जो ग्रेनी सरफेस है वो ग्रेनी सरफेस की थिन लेयर, ठीक है. तो दैट इज, अगर हम पूरे अपने क्रस्ट की बात करें तो उस क्रस्ट पे तो बहुत थिन लेयर है ना. अगर यहाँ पे हम थिन लेयर ऐसी नहीं बात करें, क्रस्ट की थिन लेयर की बात करें, ठीक है. सो दैट थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस covering the surface, that is soil. So it is closely linked to landform से related है ना. And landform determine the type of soil. अब there are various landforms on earth. अर्थ पे बहुत तरह के landforms हैं. There are mountains, there are plateaus, there are plains, there are desert. So whatever the form of land is there, so that is determining the type of soil. कि वहां की soil कैसी होगी, it depends on the landform. And soil is अब वो, क्योंकि landform जो है it helps in making of soil. Soil किससे बनती है? Soil is made up of organic matter, minerals, weathered rocks. Weathered rock की weathering होती है. What is weathering? Weathering is the breaking up and decay of the exposed rock. अब कोई रॉक है, it take thousands of years, उसकी weathering हो रही है, उस पे क्लाइमेट का असर है, उस पे विंड का असर है, उस पे वाटर का इफेक्ट. What are the agents of erosion or weathering? Water, wind and ice. Water, wind and ice. So these three factors, they are continuously eroding and they are helpful in decay of that rock. ठीक है, weathering of the that tearing and weathering of the that particular rock, that is exposed rocks. और जो भी rocks exposed है, बाहर external side में है, ठीक है. and किसका और उस पे इफेक्ट है? टेम्परेचर का भी, ठीक है. जो विंड वाटर तो है ही, साथ साथ में टेम्परेचर. व्हाट इज द टेम्परेचर देयर? फ्रॉस्ट, वहां पे फ्रॉस्ट कितनी है. देन प्लांट्स, एनिमल्स जो वहां पे डेड है वो भी उस रॉक के ऊपर सारे बाद में, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ईयर में तो वो तो बीच में ही मिल जाएंगे जो भी वहां पे मटेरियल होगा, है ना. देन दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. तो ये सारा जो भी एनिमल्स या प्लांट्स, जो वहां पे डेड एनिमल्स, उनके रिमेन्स, वो सारे आपस में मिक्स हो गए, ऑर्गेनिक मैटर बन गया, ठीक है. तो वो भी अर्थ में रॉक्स में मिक्स हो गए. तो इट टुक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ऐसे कि इट टेक्स 100 years टू मेक जस्ट 1 centimeter ऑफ सॉइल. अगर हम कहें ना कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनानी है तो उसको कितने साल लगेंगे? 1000 भी शायद कम ही हो, मोर देन 1000 ईयर. और 1000 नहीं है, वो थाउजेंड्स है, ठीक है, थाउजेंड्स ईयर. एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर. मतलब हम 1000 भी कह सकते हैं कि उससे इट इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है. एंड देन कि सॉइल अगर हम कहें कि then you have to make this diagram also. First this is parent rock, ठीक है. Suppose यहाँ पे पहले क्या है? Parent rock. Parent rock is exposed to the weathering process. What is weathering? It determines
the breaking and decay of the parent rock. It was weathering, decay and weathering, breaking up of parent rock. इसकी breaking हुई, इसका decay हुआ, then इसमें इसके ऊपर फिर आ गया weathered rock material. यहाँ पे weathered rock material. This diagram is also in your book also. ठीक है, weathered rock material यहाँ पे आ गया. ये parent rock थी. parent rock के ऊपर जो भी weathering का process हुआ, वो weathering के process से यहाँ पे weathered rock material यहाँ पे इकट्ठा हो गया. ठीक है, weathered rock material. Then उसके बाद जो वहां पे सब सॉइल, कई बार इरोजन के थ्रू भी कुछ सॉइल आ जाती है, सैंड आ जाती है. ठीक है, देन सैंड, सिल्ट, क्ले, जो भी अलग से मैटर है वो भी उसके साथ जो ऑलरेडी उस पेरेंट रॉक के ऊपर था मटेरियल यहाँ पे. ठीक है, इसमें सैंड, सिल्ट, व्हाटएवर सिल्ट जो ब्रॉट बाय द रिवर्स और वाटर बॉडीज. ठीक है, दैट वन. एंड सो ये सैंड सिल्ट, फिर इसके ऊपर जो हम कहते हैं कि दिस इज द टॉप सॉइल, ये है हमारी टॉप सॉइल, जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर जो वहां पे डेड एनिमल्स वगैरह वो भी मिक्स इसमें हुए हैं विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन. ठीक है, अब सबसे पहले जो पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक की उस जो हमारे पास सॉइल है, उस सॉइल का कलर कैसा होगा. ठीक है, वो कलर कैसा होगा वो कौन डिटरमिन करेगी, पेरेंट रॉक. ठीक है, पेरेंट रॉक जैसी होगी उससे वो हमारी सॉइल का, ठीक है, सॉइल का कलर, उसका टेक्सचर कि वो कितनी ग्रेनी है, बहुत फाइन है या ज्यादा ग्रेनी है. ठीक है, उसका टेक्सचर और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, कि कौन सी सॉइल कितनी फर्टाइल भी हो सकती है, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, वो सारी किस पे डिपेंड करेगी, ये पेरेंट रॉक पे. ठीक है, उसका कलर, टेक्सचर. दिस इज ऑल्सो डायग्राम इन योर बुक. ठीक है, ये वाले डायग्राम से पहले सॉइल का डायग्राम है. ठीक है, सॉइल के साथ ही नीचे ये सॉइल में जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, पेरेंट रॉक है, क्लाइमेट है, टाइम है, रिलीफ है, ये सारे फीचर्स. ठीक है, ये सारे डिटेल में लिखे हुए. तो पेरेंट रॉक के ऊपर अब क्या डिपेंड है, कलर का सॉइल, कलर का टेक्सचर, कलर के जो उसमें कंटेंट होंगे, और कलर की इसमें जो परमीबिलिटी लिखा हुआ है कि उसमें से सॉइल कितनी इजीली पास थ्रू हो सकती है. ठीक है, अगर हम वाटर डालेंगे तो वाटर कितनी जल्दी वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी, तो वो क्वालिटी कैसी है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑल ऑन दिस फीचर्स, डिपेंड्स ऑन द पेरेंट रॉक. देन कम्स द रिलीफ, कि एक सॉइल के बनने में वहां पे रिलीफ, अब ये पेरेंट रॉक, वहां का रिलीफ कैसा था, वहां पे वो आल्टीट्यूड पे थी पेरेंट रॉक, हाइट पे थी, किसी स्लोप पे थी पेरेंट रॉक, है ना. अब ये पेरेंट रॉक किसी हाइट पे थी, किसी स्लोप पे थी, या फिर वहां पे सॉइल जो सैंड सिल्ट आ रही है वो एक्यूमुलेट भी हो रही है कि नहीं हो रही, वो फैक्टर्स भी इस पे डिपेंड करेंगे. ठीक है, ये जो सॉइल बनने में रिलीफ, व्हाट इज रिलीफ, इफ वी से कि रिलीफ मींस, अगर हम रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं कि वहां पे माउंटेनियस एरिया है, वहां पे डेजर्ट एरिया है, वहां पे प्लेटू रीजन है, सो ऑल दीज आर रिलीफ फीचर्स, है ना. तो रिलीफ फीचर भी डिपेंड करते हैं कि वहां पे सॉइल कैसी होगी. अगर स्लैंटिंग है, अगर स्लैंटिंग है, माउंटेनियस है, तो वहां पे सॉइल फॉर्मेशन स्लो प्रोसेस होगा, बिकॉज अपर लेयर तो वॉश आउट होती जाएगी साथ साथ में, है ना. इट वाज वेयर अवे साइड बाय साइड. एंड देन हमने यहाँ पे किया कि टॉप सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी यहाँ पे मिक्स है, ह्यूमस, इसमें कितनी ह्यूमस है सॉइल में. अब वो ह्यूमस कैसे बनती है, ये बनती है विद द फ्लोरा, फोना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो भी वहाँ पे फ्लोरा फोना थी, जो वेजिटेशन थी, या वहाँ पे एनिमल्स थे वो डेड हो गए, बाद में मिक्स हो गए इसी वेदर्ड रॉक मटेरियल के साथ, तो वो क्या क्रिएट करते हैं, ह्यूमस. उस सॉइल में कितनी ह्यूमस है वो क्रिएट करते हैं. ठीक है, देन टाइम, कि कितने टाइम में वो सॉइल बनी है, उससे उसकी थिकनेस उतनी बन जाएगी. ठीक है, वो टाइम पीरियड आल्सो डिपेंड्स ऑन द सॉइल फॉर्मेशन. मतलब सॉइल फॉर्मेशन में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं दे आर कंबाइंड टुगेदर. एंड देन क्लाइमेट. अब पेरेंट रॉक है, वहां का क्लाइमेट बहुत हार्ड है, हार्ड होगा तो रॉक में वेदरिंग ज्यादा होगी. अगर ठंडा क्लाइमेट है तो वहां पे वेदरिंग हो सकती है ज्यादा, अगर ज्यादा हॉट है तो भी वेदरिंग ज्यादा हो सकती है. ठीक है, ज्यादा हॉट, ज्यादा कोल्ड,
तो दोनों ही, और रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल होती है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट इन द सॉइल फॉर्मेशन, इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, कि वहां पे वेदरिंग कितनी होगी, वेदरिंग कहाँ पे ज्यादा होगी, रेनफॉल ज्यादा है, टेम्परेचर है, ठीक है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। व्हाट इज सॉइल, इट इज क्लियर, द अपर थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस, ठीक है, दैट इज कवरिंग द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ। देन फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, फैक्टर्स क्या क्या है, एक पेरेंट रॉक है, ठीक है, साथ में रिलीफ फीचर वहां का कैसा है, ठीक है, रिलीफ, उसके बाद टाइम, देन यस क्लाइमेट, देन फ्लोरा फोना, ठीक है, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर सॉइल फॉर्मेशन, क्लियर। And other factors, topography, role of organic material, time, so all these comes in this soil formation factors. Clear? Soil part is clear. So this is what is soil. ठीक है, अब इस soil को, इसकी degradation कैसे हो रही है और इसको हमने कंजर्व कैसे करना है। हाँ जी बेटा, टोपोग्राफी भी रिलीफ फीचर में आ जाता है, ठीक है, कि अपर पार्ट ऑफ सरफेस हाउ इट इज, कैसा है वो, जैसा हम कह रहे हैं ना कि रिलीफ, रिलीफ में टोपोग्राफी रिलीफ एक ही बात है, ठीक है, कि वो माउंटेनियस एरिया है या क्या है। यस, तो नाउ क्लियर बेटा, ठीक है। अब दिस इज सॉइल, जैसे हमने लैंड के डिस्कस किया था कि लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, ठीक है, इट इज वेरी यूजफुल टू अस, बट इट इज लिमिटेड if we have threats regarding the land resource and we have to conserve it. Same is with this case, soil. Soil is very important because it is very important in agriculture, ठीक है, how fertile the soil is, it also depends on humus, ठीक है, कि वो soil fertile, इन सभी का बैलेंस अगर होगा तो वो soil बहुत fertile होगी। ये जो इसमें टॉप सॉइल में हमें ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस मिल रही है या वेदर्ड रॉक मटेरियल जो आपस में मिक्स हुए हैं, सभी मिक्स होके जो सॉइल बना रहे हैं, तो इट डिपेंड्स कि वो सॉइल कितनी फर्टाइल है, ठीक है। और सॉइल की फर्टिलिटी, जब ये टॉप सॉइल जो है, व्हेन दिस टॉप सॉइल इट वेयर अवे विद द एजेंट्स ऑफ इरोजन, एजेंट्स ऑफ इरोजन कौन कौन से हैं, विंड वाटर, उनके थ्रू जब ये टॉप सॉइल की परत एक जगह से दूसरी जगह इरोड हो जाती है तो वहां की फर्टिलिटी कम हो गई, ये टॉप सॉइल यहाँ से वॉश आउट हो गई, वेयर अवे हो गई, ठीक है, यहां से इरोड हो गई, तो सोइल इरोजन। अब ये क्या है, हमारे पास थ्रेड्स है इसके, ठीक है, अब थ्रेड्स क्या है, एक सॉइल इरोजन है और दूसरा डेप्लीशन। सॉइल इरोजन मींस कि अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज इरोडेड, दिस टॉप सॉइल दिस इज इरोडेड, वो हो गई सॉइल इरोजन। डेप्लीशन की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम रिड्यूस हो रही है, ठीक है, देयर वेरियस रीजंस हैं इसके। Soil erosion and depletion, these are the major threats to soil as a resource. Resource because it is very useful to us, है ना, हमारे लिए बहुत यूजफुल है, मेनली फॉर एग्रीकल्चर के पर्पज से देखें तो, ठीक है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर कहाँ पॉसिबल होगी, जहां सॉइल फर्टाइल होगी, जहां सॉइल फर्टाइल नहीं होगी देन एग्रीकल्चर विल नॉट बी पॉसिबल। यस बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल, योर नेम बेटा, शब्द है ना। यस बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल, हाउ इट इज फॉर्म और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। हाँ जी बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल, yes, and what are the factors responsible for soil formation? Yes, listen carefully beta. So now we are doing threats. So what are threats to this soil resource? Soil erosion and depletion, ठीक है, क्योंकि soil जो है, जैसे हमने land के यूज किए कि land construction, building, कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कई पर्पसेस के लिए यूज होती है। अगर हम इस
सॉइल की बात करें तो सॉइल हमारे लिए कब बेनिफिशियल है, जब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फूड ग्रो कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है, अपने लिए हम कुछ भी ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, टॉप सॉइल। अगर फर्टाइल होगी तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं होगी, जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टोरी की थी 2 बच्चों की, मेम्बा और सेकेंड वन पीटर, है ना, कि मेम्बा के फादर बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी दे इवन डोंट प्रोड्यूस मच एग्रीकल्चर इवन टू मीट देयर नीड्स। और दूसरी तरफ जो पीटर है वो टेक्निकल मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स भी यूज कर रहे हैं, बहुत एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, साथ साथ में और कई काम कर रहे हैं, है ना। तो वो एक ही काम को वहां पे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रही, क्यों, डिपेंड्स ऑन द पेरेंट रॉक। वहां पे रॉक की सरफेस ज्यादा था, ठीक है, तो पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है कि टॉप सॉइल कैसी होगी, ठीक है, इट विल बी फर्टाइल और नॉट फर्टाइल। अब इसमें ये 2 हमारे पास थ्रेड्स हैं, सॉइल इरोजन एंड डेप्लीशन। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा हमारे, ताकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को कंजर्व कर सके, है ना। वो सॉइल क्या है, इरोड ना हो, है ना, जो इरोजन हो रही है वो इरोजन ना हो, ठीक है, उसको हम बचा के रखें। अगर वाटर विंड आती है या रेनफॉल आती है तो वो वाटर जो है उस रेनफॉल वाटर के साथ बह के ना चली जाए, ठीक है, वी शुड कंजर्व इट। तो उसके लिए बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। फैक्टर विच लीड टू द सॉइल डिग्रेडेशन किस किस वजह से होती है डिग्रेडेशन, जैसे कि हमने लैंड डिग्रेडेशन के किए थे, सेम डिफोरेस्टेशन है, ओवर यूजिंग ओवर ग्रेजिंग है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स है, ठीक है, रेन वॉश है, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, ये सारी लैंड डिग्रेडेशन के लिए भी सेम रीजन रिस्पॉन्सिबल थे। हाँ जी बेटा, रेन वॉश की रेनफॉल हुई तो रेनफॉल अपने साथ बहा के ले गई अपर सॉइल, अगर तो स्लोप है तो स्लोप में तो बहुत जल्दी बह जाएगी, अगर प्लेन एरिया है तो चलो धीरे धीरे बहेगी लेकिन फिर भी वॉश आउट होगी, है ना। तो रेन वॉश वो भी हमारी सॉइल की, हम सिर्फ सॉइल की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो अपर सॉइल को तो बहा के लेके जाएगी। सो एसिड रेन, हाँ वो तो हम डेप्लीशन कह सकते हैं, है ना। सॉइल इरोजन ज्यादा कहाँ होती है, जो स्लांटिंग एरियाज वहां पे बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए अब मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये क्या है हमारे पास थ्रेड, हम क्या करेंगे इसके लिए फिर कंजर्वेशन, है ना, कि उस सॉइल को, उसकी फर्टिलिटी को हम बचा के रखेंगे, ठीक है। हाउ वी विल कंजर्व सॉइल, तो कंजर्व किसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले है मल्चिंग, ठीक है, मल्चिंग। अब इसमें क्या करते हैं, मल्चिंग में बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जैसे हमने यहाँ पे प्लांट्स उगाए हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल प्लांट्स उगाए हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, और उनके बीच में हमने यहाँ पे क्या फिल कर दिया लैंड को, विद ऑर्गेनिक मैटर, स्ट्रॉ, ठीक है, जो भी हमारे पास ड्राई ग्रास हो गई या जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल है उससे हमने इस चीज को कवर कर दिया, ताकि यहाँ पे जो इसकी सॉइल की ह्यूमस है वो मेंटेन रहे, ठीक है। सॉइल का जो मॉइस्चर है, अगर बहुत ड्राई रीजन है, वहां पे बहुत हॉट एरियाज हैं, तो सॉइल का मॉइस्चर तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। अगर वो वाटरिंग भी कर रहे हैं तो बार बार पानी देना पड़ेगा उन्हें। तो ये ऑर्गेनिक मैटर किसमें हेल्प करता है, टू रिटेन द सॉइल मॉइस्चर। क्लियर मल्चिंग, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉइल मॉइस्चर को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, ताकि ड्राई रीजन में बहुत जल्दी ऑर्गेनिक मैटर से कवर हो गई, जब कवर होगी तो कुछ ना कुछ तो उसकी मॉइस्चर कवर होगा, है ना, कुछ टाइम लगेगा उसको। देन कम्स द कंटूर बैरियर्स। कंटूर बैरियर का मतलब तो क्लियर ही है ना, किसी चीज पे हमने रॉक लगा दी, बैरियर लगा दी है, जैसे पुलिस भी बैरियर लगा देती है ना। तो कंटूर जो हमारी आउटलाइन है, जैसे हमारा ये बोर्ड है, इसका साइड्स, चारों साइड्स पे ये क्या है हमारा कंटूर, तो इस कंटूर पे हम इस तरह की आगे थोड़ी सी बाउंड्रीज बना दे तो वो क्या हो जाएंगे, कंटूर बैरियर्स, के हमने सब तरफ बैरियर्स लगा दिए, ठीक है। तो कंटूर बैरियर, इसमें क्या करते हैं, स्टोन्स, ग्रासेस, सॉइल, कि जो बैरियर हमने बनाना है, सपोज दिस इज आवर फार्म, ये हमारा फार्म है, इस पे हमने सभी साइड्स पे क्या कर दिए, बैरियर्स बना दे। उनके लिए क्या यूज किया हमने, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल, इन सबको यूज करके हमने यहाँ पे बैरियर्स बना दिए, ठीक है।
एंड दे आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग द कंटूर्स। और कंटूर जैसे कि ये हमारा हिली एरिया है, ठीक है, प्रॉपर हिली एरिया है, ऐसे ऐसे हिली एरिया है। अब हिली एरिया में सब तरफ स्लोप है ना, अगर हम देखें तो सब तरफ स्लोप जा रहा है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे स्लोप में जैसे टेरेस फार्मिंग भी करते हैं ना हम, मतलब अलग अलग जैसे जैसे स्लोप्स बनाए हैं हम, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा प्लेन एरिया है वहां पे हमने यहाँ पे फार्मिंग की है। तो यहाँ पे हमने बैरियर्स बना लिए, कंटूर्स। तो ये हमारी आउटलाइन थी ना, उसी आउटलाइन में हमने क्या कर लिए, बैरियर्स बना लिए। यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर नहीं हो रहा ना, जैसे ये हमारे पास स्लोप है, सपोज एक ही साइड बनाते हैं हम, है ना, ये स्लोप है। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप पे हमने थोड़ी थोड़ी क्या बनाए हुए हैं, फार्म्स बनाए हुए हैं। कई बार अगर हिली एरियाज में गए होंगे तो आपने देखे भी होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बैरियर्स बना लेते हैं। तो जैसे उनका वो पूरा एरिया है, ठीक है, जैसे हिली एरिया है उसी शेप में वो बैरियर्स बना लेते हैं। कंटूर हो गया, उन्होंने अपने सारी आउटलाइन में बैरियर्स बना लिए। किससे बना लिए, स्टोन ग्रास सॉइल को यूज करके। सो ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ दीज बैरियर्स। अब ये तो बना लिए, इनके सामने यहाँ पे ट्रेंचेस भी बना दी जाती है, छोटी छोटी खाइयां जैसे कि अगर बारिश आएगी भी तो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, सॉइल को बहा के नहीं लेके जाएगा। एक तो बैरियर्स लगा दिए, ठीक है, बैरियर्स भी लगा दिए, साथ में यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेंचेस भी बना दी। उससे क्या होगा, जो भी पानी आएगा जो उनके खेत में भी है तो वो भी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा साइड्स में, ठीक है, तो वो वहीं पे रिटेन करेगा। तो मॉइस्चर उनका सारा जो वहां की सॉइल की वाटर है तो वो सॉइल को बहा के नहीं लेके जाएगा, काफी हम सॉइल को वहां पे बचा सकते हैं, डिग्रेडेशन इरोजन कम होगी। देन रॉक डैम। आप जो माउंटेनियस एरिया है वहां पे जो भी रिवर के हम कह सकते हैं कि जो वाटर बॉडीज हैं, रिवर माउंटेनियस एरिया में स्मॉल स्मॉल रिवर्स हो गई, ठीक है, वहां पे वो रॉक के डैम बना देते हैं ताकि वाटर फ्लो थोड़ा कम हो जाए, जो वाटर फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाए, इसलिए रॉक्स डैम्स बना देते हैं। बड़े बड़े जो भी रॉक्स पत्थर उनको मिलते हैं वो पानी के बीच में रख देते हैं ताकि पानी का थोड़ा स्लो जो है वो फ्लो कम हो जाए। इससे इट प्रिवेंट्स द गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। जैसे कि अब पानी आया, ठीक है, सीधा यहाँ पे आया, तो यहाँ पे पानी आया तो यहाँ पे ऐसे ऐसे, क्योंकि पानी में रेन फॉल है तो वो अगर रिवर में पानी तेज हो गया वो सारा उनके खेतों में आ गया, तो यहाँ पे नालियां सी बन जाती है जिसमें कि पानी बह के जा ही जा रहा है, ठीक है, तो वो नहीं बनती। अगर हमने यहाँ पे ये सपोज दिस इज रिवर, हमने यहाँ पे रॉक डैम्स बनाया, ठीक है, जब पानी तेज आएगा यहाँ से, इधर उनके खेत है तो उन्होंने ऊपर ही बना दिए, है ना, ऊपर बना के रखा है, तो पानी का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा, है ना, नहीं तो सीधा यहाँ पे आके वो सीधा यहाँ सीधी सॉइल बहा के लेके जाएगा जितना फास्ट पानी आएगा, ठीक है, वहां पे गलीज बन जाएंगी, ठीक है, गलीज बन जाएंगी जिससे कि पानी का बहाव बहुत हो जाएगा। हाँ जी बेटा, यस, क्रॉप्स तो उनकी सॉइल तो क्रॉप्स तो होंगी होंगी, हम यहाँ पे सिर्फ अगर सॉइल की बात करें, क्रॉप्स लॉस तो होगा ही उनको, है ना, लॉस तो होगा ही क्रॉप्स का, ठीक है। देन now mulching, contour barriers, rock dams are clear. Then comes the terrace farming. अब terrace broad flat steps और terraces are made on the steep slopes. जैसे हम steep slopes की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत steep slopes है तो वहां पे हमने क्या किया है, ये terraces बना दिए, ठीक है, थोड़े से यहाँ पे लैंड को फ्लैट किया, यहाँ पे लैंड को फ्लैट करके यहाँ पे फार्म बना दिया, फिर यहाँ पे बना दिया, ठीक है, फिर आगे यहाँ पे बना दिया, तो हमने डिफरेंट टेरेसेस बना दिए, थोड़ा सा एरिया फ्लैट किया, वहां पे अपनी एग्रीकल्चर कर ली, ठीक है, एंड सो दैट फ्लैट सर्फेसेस आर एबल टू ग्रो क्रॉप्स, ताकि वहां पे हम क्रॉप्स ग्रो कर सके। सो दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, इससे भी सॉइल इरोजन कम होती है, ठीक है। इन टेरेसेस पे भी हम ये कंटूर्स और ये बैरियर्स बना सकते हैं, टेरेसेस बना लिए, उन टेरेसेस पे भी हम कंटूर बैरियर्स बना सकते हैं, ठीक है। देन इंटरक्रॉपिंग, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट था टेरेस फार्मिंग, ठीक है, टेरेस फार्मिंग इज क्लियर, द एरिया दैट इज फ्लैटर एंड फार्मिंग इज डन, एंड देन रॉक डैम्स हो गए एंड इंटरक्रॉपिंग, रॉक डैम्स भी कर लिया हमने, देन इज द इंटरक्रॉपिंग। अब इंटरक्रॉपिंग क्या है कि क्रॉपिंग मतलब कि हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग कि हम बीच बीच में दो तरह की क्रॉप्स उगा रहे हैं। कैसे उगा रहे हैं
Different crops are grown in alternate rows and sown at different time to protect the soil from rain wash. जैसे अगर यहाँ पे सारे खेत हैं, ठीक है, ये तो चलो हमने टेरेस की बात की, अगर प्लेन एरिया भी है, ठीक है, प्लेन एरिया भी है, हमने यहाँ पे एक फसल उगा ली, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई और छोटे छोटे प्लांट्स उगा लिए, यहाँ पे हमने दूसरी उगा ली, ठीक है, मतलब अल्टरनेट रोज में हमने अलग अलग जो है वो क्रॉपिंग कर ली, इंटर क्रॉपिंग कर ली, ठीक है। अगर हम पहले इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास है, फिर इसकी करेंगे, मतलब टर्न बाय टर्न कर रहे हैं, पहले हम इसकी कर रहे हैं, अगर हमने ये इसकी हार्वेस्टिंग की है तो ये हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे तो फिर ये लगा देंगे, मतलब इंटर क्रॉपिंग चलती रहेगी, खाली जगह नहीं होगी, ठीक है। तो दैट विल सेव सॉइल इरोजन, वो भी सॉइल इरोजन को बचा के रखेंगे। क्लियर ये पॉइंट, इंटरक्रॉपिंग। देन कम्स द कंटूर प्लोइंग। अब कंटूर बैरियर तो हमने किया, अब ये कंटूर प्लोइंग, प्लोइंग तो आपको क्लियर ही है ना, जो हम फार्मिंग में करते हैं प्लोइंग। अब जैसे ये कंटूर्स है, ये पूरी हिल है ना, ये पूरी हिल्स है, अब इसकी यहाँ पे ऐसे अगर रेनफॉल होगी तो पानी ऐसे ही नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा, लेकिन हमने कंटूर ऐसे बनाए हुए हैं, कंटूर हमने ऐसे बनाए हुए हैं, तो हम जो हल चलाएंगे ना वो भी ऐसे ही चलाएंगे, जो हम प्लोइंग करेंगे वो हम ऐसे करेंगे, यस, ताकि अगर रेनफॉल आए भी तो इनके बैरियर्स में बीच बीच में वो, अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, फ्लो और तेज होगा, इसलिए ये हम कैसे करते हैं, कंटूर प्लोइंग। द प्लोइंग इज डन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द कंटूर्स, ठीक है, प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर्स, तो ये पैरेलल हो गए कंटूर्स के, पैरेलल टू द कंटूर्स, प्लोइंग इज डन ऑन ए हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर, तो ये भी एक नेचुरल बैरियर बनते जा रहे हैं। कहीं जगह पे जरूरी नहीं कि हम सब कुछ इकट्ठा ही करेंगे, कंटूर बैरियर्स भी हमने साथ में बनाए हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द स्लोप। स्टीप स्लोप है तो हम टेरेस फार्मिंग भी कर रहे हैं, हम कंटूर बैरियर्स भी बना सकते हैं, ठीक है, हम कंटूर प्लोइंग भी कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द स्लोप वी आर यूजिंग विच मेथड। सो देन शेल्टर बेल्ट्स, हाँ जी बेटा, ये दिस वी हैव डन मेथड्स बट नो वन इज अबव नेचर ना, वी आर डूइंग आवर एफर्ट्स, ठीक है। तो ये हमने ये सारे, अगर थोड़ी बहुत बारिश होगी तो उससे तो बची जाएगी सॉइल, है ना, तो देन कंटूर प्लोइंग होगी, देन शेल्टर बेल्ट्स। अब शेल्टर बेल्ट्स इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, ठीक है, आपकी बुक में पिक्चर भी बनी हुई है, एक कंटूर प्लोइंग की बनी है, ठीक है। अब ये कंटूर प्लोइंग यहाँ पे इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्लोप आपको दिख नहीं रहा कि स्लोप कहाँ पे है और क्या है ना, जैसे ये स्लोप है, एक जगह पे उन्होंने डिफरेंट क्रॉप उगाई हुई है, ठीक है, एक जगह पे डिफरेंट उगाई हुई है, ऐसे कंटूर्स बनाए हुए हैं, तो इस पिक्चर इज नॉट प्रॉपरली विजिबल, दैट इज व्हाई। एक टेरेस फार्मिंग की है कि डिफरेंट स्मॉल स्मॉल टेरेसेस आर फॉर्म, एक शेल्टर बेल्ट्स की है, शेल्टर बेल्ट में क्या करते हैं, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, ठीक है, पूरा ड्राई रीजन है तो वहां पे हमने एक पूरी रोज कर ली, है ना, तो पूरी रोज, अब जो भी विंड का वर्क होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, जो विंड की वजह से इरोजन हो रही थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, जैसे अपने खेत के हमने चारों साइड्स पे रोज ऑफ ट्रीज लगा दिए ताकि हमारे जब भी विंड आए या स्टॉर्म्स आए तो हमारे खेत को ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। These all methods are clear of soil conservation. So with using these methods, we can conserve soil erosion and its depletion. ठीक है, जो depletion मतलब जो टॉप सॉइल deplete हो रही है, erode हो रही है, deplete हो रही है, ठीक है। So this is one activity is also given in your book that you can fill 2 trays. In one tray only soil, in a second tray you can grow some grass. And then you can try by pouring water on it, ठीक है, which soil will erode faster, without plants it will move, wash out further, ठीक है, so it means soil roots, it holds the you can say soil, and binding of soil is done with the roots of plants, ठीक है। So now next resource comes the water resource. Yes, any doubt till now?
हाँ जी बेटा, हाँ जी हरमन। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड is simply it is here move to the landslide कि it is also one, this is one of the exogenic forces जो भी आपने previous topic में किए थे, ये भी उसमें से ही है, ठीक है। तो जैसे अभी हम सिर्फ रिसोर्सेज के बारे में ज्यादा फोकस है, ठीक है, तो ये सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसकी ले लेना लैंडस्लाइड्स की, ठीक है, साथ में केस स्टडी दी हुई है। तो लैंडस्लाइड क्या है, सिंपली डिफाइंड एज अ मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स। माउंटेनियस एरिया में देखें तो एक पूरा मास ऑफ रॉक्स जो है उसकी मूवमेंट है, ठीक है, थोड़ी सी सॉइल नहीं है, पूरी मास ऑफ रॉक है। मास मतलब लार्ज पीस ऑफ रॉक यू कैन से, ठीक है, मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिज ऑन अर्थ डाउन ए स्लोप, मतलब स्लोप से एक पूरा माउंटेन का पीस ही हम कह सकते हैं कि वो नीचे गिर गया, ठीक है। सो दैट आर लैंडस्लाइड्स, दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक, मोस्टली अर्थक्वेक के साथ भी हो सकते हैं, फ्लड्स कहीं आगे उसके साथ, रेनफॉल बहुत आगे उसके साथ भी, या वॉल्केनोस, इन सबके साथ ये इंटरकनेक्टेड भी हो सकते हैं। कई बार रेनफॉल का टाइम होता है तो मोस्टली लैंडस्लाइड्स हैपेंस इन माउंटेनियस एरियाज, है ना। सो दिस इज द, यू हैव टू डू इट द मीनिंग ओनली, ठीक है, लैंडस्लाइड्स। देन वन केस स्टडी इज गिवन कि वहां पे बहुत मैसिव लैंडस्लाइड आया था, मैंजी विलेज है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, एंड देयर इट वाज कोज अ लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्लियर। फिर हम इसके लिए मेथड क्या कर सकते हैं, हम वहां पे जो भी हमारे लैंडस्लाइड्स के हमें लगता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत आते हैं, पहले तो हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए, जो डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, वहां पे हम रिटेंशन वॉल भी बना सकते हैं पहाड़ों के साथ साथ में, ताकि सॉइल जो जल्दी इरोड ना हो, ठीक है, वहां पे रिटेंशन वॉल बना सकते हैं। तो दिस यू कैन सी। क्लियर। सो वी कैन कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू बेटा दिस टॉपिक। Okay then, thank you students.